بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وللجدہ السدس، جدہ کو سدس ملے گا، لأم کانت او لأب، چاہے وہ دادی ہو یا نانی ہو، دونوں صورتوں میں، ایک ہو یا زیادہ ہو، باہر صورت۔ اذا کننا، جبکہ یہ ثابت ہوں اور درجے میں یکساں ہوں، یعنی ایک درجے کے ہوں اور سب کے سب جدہ صحیح ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو سدس ملے گا۔ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، یہ سب ساقط ہو جائیں گے ماں کی وجہ سے۔ وَالْأَبْوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ، اور ابویات یہ باپ کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گے۔ ماں کی وجہ سے تمام دادیوں کا ساقط ہونا کیوں ہے؟ کل بتایا تھا کہ جہت وراثت ایک ہے، عمومیت، تو چونکہ ماں اصل ہے عمومیت میں، تو اس کی موجودگی میں کسی اور کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ اور باپ کی موجودگی میں بھی دادیاں ساقط ہوں گی، اس لیے کہ ان کے اور میت کے درمیان واسطہ باپ ہی ہے۔ جب وہ خود موجود ہے تو باقی سب ساقط ہو جائیں گی، یہ بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے دادا کی موجودگی میں بھی ابویات یعنی دادیاں ساقط ہو جائیں گی، سوائے ام الاب دادی کے، اس لیے کہ دادا ام الاب سے اوپر جو ہیں، یعنی دادی سے اوپر جو دادیاں ہیں، پردادی وغیرہ، ان سب کے لیے دادا واسطہ ہے۔ جب وہ موجود ہے تو ان میں سے اوپر والے کو کچھ نہیں ملے گا، یہ ہو گیا۔ اور رہی بات دادی کی، تو چونکہ دادی کے لیے دادا واسطہ نہیں ہے، دادی کے لیے باپ واسطہ ہے، تو باپ موجود نہیں ہے تو دادی حصہ پائے گی۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، کہ وہ دادا کے ساتھ وارث ہوگی۔ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ اس کی طرف سے نہیں ہے، مطلب یعنی دادا کے واسطے سے وہ نہیں ہے، وہ باپ کے واسطے سے۔ والقربہ من ای جہت کانت تحجب البعدا، اور قریبی دادی کسی بھی جہت کی ہو، وہ دور والی دادی کو محجوب کر دے گی، حصہ نہیں لینے دے گی۔ من ای جہت کانت، چاہے وہ کسی جہت کی ہو، مطلب دادی نانی میں سے جو قریب ہوگی وہ دور والی کو حصہ نہیں لینے دے گی، ہے نا جی۔ وارثتاً کانت القربہ او محجوبتاً، یہ اصل سمجھ رہا ہے کہ قربہ محجوب ہو یا وارث ہو، دونوں صورتوں میں قربہ کی موجودگی میں بعدا کو نہیں ملے گا۔ اس کی مثال سیٹ کیجئے، جیسے زید مر گیا اور اس کا باپ موجود ہے اور اس کی پرنانی موجود ہے، تو باپ کو بھی حصہ ملے گا اور پرنانی کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرنانی یہ جدات میں سے نہیں، ابویات میں سے نہیں ہے، پرنانی دادی میں سے نہیں ہے، اور باپ کس کو روکتا ہے؟ دادیوں کو روکتا ہے، لہذا باپ کو بھی ملے گا اور پرنانی کو بھی۔ پرنانی کو سدس دیں گے، باقی پورا مال باپ اسباب ہونے کی وجہ سے پالے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ آسان ہو گیا۔ اب اسی کو یوں سمجھیے، زید مر گیا، اس کا باپ موجود ہے، اس کی دادی موجود ہے اور اس کی پرنانی موجود ہے، تو پرنانی کی طرف سے لیجئے، پرنانی کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کے اوپر کی ایک دادی، ایک پیڑھی اوپر دادی موجود ہے، پرنانی ایک پیڑھی نیچے نہ ہے، دادی کے مقابلے میں کون ہوگی؟ نانی، اور پرنانی یہ گویا دادی کے ماں باپ کے درجے میں ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پرنانی یہ ساقط ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ دادی موجود ہے، پردادی نہیں ہے، دادی موجود ہے، تو قربہ نے بعدا کو کیا کیا؟ محجوب کر دیا، سمجھ گئے؟ اب دادی یہاں حصہ پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ تو کہتے ہیں باپ موجود ہے اس لیے دادی بھی ساقط ہو جائے گی۔ تو دیکھو دادی خود ساقط ہو رہی ہے، محجوب ہو رہی ہے، لیکن اپنے سے نیچے والی کو کیا کر رہی ہے؟ محجوب کر رہی ہے۔ سمجھ گئے پوری بات؟ تو اب یہاں کل مال کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قربہ کسی بھی جہت سے ہو، یہ بعدا کو محجوب کر، اس کو آپ لوگ لکھ کے بھی سمجھیے گا، ہے نا، سیدھی لکیر دے کر کے پہلے آپ لکھیے اب، اور پھر لکھیے ام الام، کیا لکھیں گے؟
उम्मुल उम का मतलब नानी, तो उम्मिल उम का मतलब पर नानी, ये लिखिएगा। तो अब वहां पर नानी छठा हिस्सा पाएगी, बाप को असबा बनाना है। फिर लिखिएगा अब जद्दा और उम्मो उम्मिल उम, तो जद्दा साकित होगी अब की वजह से, और उम्मो उम्मिल उम यानी परनानी साकित होगी जद्दा की वजह से। ठीक है ना। वैजा कांतिल जद्दा जाता कराबतिन, आज ये समझना है असल, अगर एक दादी कई कराबत वाली हो, जाता कराबतिन वाहिदा, एक दादी एक कराबत वाली हो, उसको एक रिश्ता हो उसका सिर्फ, का उम्मो उम्मिल अब, जैसे उम्मो उम्मिल अब है ना जी, और उम्मो उम्मिल अब, उम्मिल अब मतलब, अरे उम्मो उम्मिल अब, तो उम्मुल अब किसको कहेंगे? दादी को। उम्मुल अब दादी को कहेंगे, उसकी माँ क्या कहेंगे? दादी की माँ। तो उम्मो उम्मिल अब मतलब क्या हुआ? दादी की माँ। उम्मो उम्मिल अब का मतलब दादी की माँ हो गया। वल उखरा ज़ाता खराबतैन, और दूसरी वाली दो रिश्ता रखती हो, अब अक्सर या चंद रिश्ते रखती हो, दूसरी वाली दादी दो रिश्ता रखती हो या चंद रिश्ते रखती हो, का उम्मो उम्मिल उम, उम्मो उम्मिल उम मतलब नानी की माँ, पर नानी, जैसे नानी की माँ वही ऐज़न उम्मो अबिल अब, वही बन जाए दादा की माँ। क्या बन जाए? दादा की, अरे उम्मो अबिल अब, तो अबुल अब कौन हुआ? दादा हुआ। उसकी माँ कौन होगी? दादा की माँ, है ना। वही बन जाए दादा की माँ। बेहाज ही सूरा, अब आपके सामने किताब में दाहिने तरफ जो नक्शा बना हुआ है ना, उस नक्शे को ये दिखा रहे हैं। ये ज़ाता कराबतैन है दाहिने वाला, और बाएं तरफ जो नक्शा है जिसमें 4 उम है ना, और दूसरी तरफ 2 अब और 2 उम है, और बीच में एक उम एक अब है, ये ज़ाता कराबतैन नहीं है, ये अक्सर की मिसाल है। तो ज़ाता कराबतैन वाला समझिए पहले, इसमें तकसीम कैसे किया जाएगा? नीचे वाली सतर एक पढ़ लीजिए। युक़स्समु सुदुस बैनहुमा इंदा अबी यूसुफ़ा रहमहुल्लाहु अंसाफन बेअतिबारिल अबदान, सुदुस इनके दरमियान इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, इसलिए कि 2 ही हैं। आदमी कितने हैं? औरतें 2 है ना, तो 2 औरतें, इसलिए 2 में तकसीम किया जाएगा। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। क्यों? इसलिए रिश्ता कितना है? एक को 2 रिश्ता है और एक को 1 रिश्ता हासिल, तो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ये सब अभी आपको ऊपर से गुजर गया है ना। अब यहाँ ये कापी है, इस कापी को आप सामने रख करके और समझिए, थोड़ा करीब आइए, ठीक है। और जो ऑडियो सुने है ना, वो ऑडियो पर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसका इमेज वगैरह लेकर के हम भेज देंगे। करीब आइए, देखिए ये दाहिने तरफ वाले नक्शे की बात चल रही है, और हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। उम्मो उम्मिल उम नीचे शुरू कर रहे हैं, उम्मो उम्मिल अब ये नीचे से दोनों शुरू करेंगे। तो आपको हम कहते हैं, किताब मत देखिए, किताब से कुछ नहीं समझ में आएगा अभी, है ना। यही समझ में आएगा जो मेरे पास ये है कागज, इसको देखिए। 2 औरतें हैं, एक का नाम है सलमा, एक का नाम है ज़ैनब, ठीक है। ये दोनों जो औरतें हैं, इन दोनों, ये दोनों सहेली हैं मान लो, ठीक है। अब ज़ैनब जो है, इसकी एक बेटी है सलीमा, और सलमा जो है उसकी एक बेटी नसीमा है और एक बेटा खालिद है, समझे। तो अब ज़ैनब और सलमा ने यह तय किया कि ज़ैनब की बेटी सलीमा और सलमा का बेटा खालिद, इन दोनों का आपस में निकाह कर दिया जाए। इन दोनों का आपस में, तो इन दोनों का आपस में ये निकाह हो गया। देखो जोड़ दिया मैंने, है ना, ये दोनों जुड़ गए। हालांकि ये दोनों किसके बच्चे हैं? इसके, देखो है ना, इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या उसके बाद। सलमा और ज़ैनब ने अपने बच्चों का निकाह कर दिया। अच्छा, सलमा का
की बेटी एक है जिसका नाम है नसीमा, और दूसरा एक बेटा उसका नाम है खालिद, और जैनब जो थी उसकी बेटी का नाम था सलीमा। तो सलीमा और खालिद का निकाह हो गया। अब खालिद की एक बहन भी तो है नसीमा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हो गया। अब नसीमा की एक बेटी पैदा हुई शमीमा, इसका शौहर कौन है हमको उससे लेना देना नहीं है ना। तो सलमा की बेटी नसीमा है और बेटा खालिद है। इसी सलमा की बेटी नसीमा की एक बेटी पैदा हुई शमीमा, ठीक है। और सलीमा और खालिद के दोनों के यहां एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है हामिद, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में मशवरा किया। खालिद ने कहा अपनी बीवी सलीमा से कि मेरी बहन नसीमा की बेटी जो शमीमा है ना, उसका रिश्ता हम अपने बेटे से कर देते हैं। तो गोया क्या कर रहा है, अपनी भांजी का रिश्ता अपने बेटे से कर रहा है, समझे। तो इन दोनों ने मिलकर के हामिद और शमीमा का निकाह कर दिया। अब इन दोनों से बकर पैदा हुआ, समझे। अब जब बकर पैदा हुआ तो ऐसी सूरत में इनका इंतकाल हो गया, किसका, एक शमीमा नीचे नसीमा, दोनों इंतकाल हो गया। इधर हामिद सलीमा और खालिद इन सब का इंतकाल हो गया। बचे कौन को नहीं मालूम, सिर्फ जैनब और सलमा बचे हैं, है ना, और बाकी सब का इंतकाल हो गया। अब बकर का इंतकाल हो रहा है तो इसकी वरासत में सलमा और जैनब को कितना हिस्सा मिलेगा। तो कहते हैं कि जो जू कराबतैन है उसको डबल मिलेगा और जो एक कराबत वाली उसको एक हिस्सा मिलेगा। तो अब आप देखिए कैसे जू कराबतैन है। ये सलमा बकर की कौन लगी, बकर की माँ की माँ की माँ, तो उम्मो उम्मिल उम हुई, यानी परनानी, नानी की माँ, एक रिश्ता ये हो गया इसका। ये सलमा बकरी की और भी लगेगी कुछ, कैसे, बकर के बाप की माँ, तो क्या हुआ, उम्मो अबिल अब, ये कहा है ना उम्मो अबिल अब, है ना, मैंने उसको उम्मुल जद लिख दिया, वही बात हुई। तो ये बकर का दादा है, ये बाप है, ये दादा है ना, इस दादा की माँ हुई। तो देखो उम्मो उम्मिल अब, है ना, इसको आप उम्मो उम्मिल अब कहिए या उम्मुल जद कहिए, बात बराबर है ना। तो गोया के सलमा का दो रिश्ता हुआ बकर से और जैनब का एक ही रिश्ता है, कौन सा, बकर जो है वो जैनब की बेटी के बेटे का बेटा है। मतलब बकर जो है वो जैनब क्या बोलते हैं, बकर जो है वो इन दोनों के दरमियान रिश्ता हुआ कि जैनब ये बकर की दादी की मां हुई, नहीं समझे। बकर की दादी है सलीमा और ये कौन है, उसकी मां है। तो क्या हुआ, बकर और जैनब के दरमियान रिश्ता क्या हुआ, दादी की मां, उम्मुल जद्दा। इसको उम्मुल जद्दा कहिए या फिर इसको कहिए उम्मो उम्मिल अब, है ना, उम्मो उम्मिल अब है ना, उम्मो उम्मिल अब, ये हो गया, ये दो शुरू हो गए, उम्मो उम्मिल अब। तो गोया हुआ क्या कि अब जैनब को एक रिश्ता हासिल है और सलमा को दो रिश्ते हासिल है। इसको समझ गए हैं। तो इसी तौर पर आप दूसरे को भी समझ सकते हैं, है ना, कि दूसरे को आप यूं समझिए कि उसको भी लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे वो भी डिस्टर्ब करेगा, तो उसको भी लिख लेते हैं आसानी से। तो अब बाएं तरफ वाला देखिए, है ना, जिसमें 4 ओम है, इसमें भी इसी तौर पर आपको सेट करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर एक औरत है जिसका नाम है सलमा, दूसरी औरत थी जिसका नाम है खदीजा, ठीक है, इन दोनों का मामला है। देखो अब क्या है, सलमा की एक बेटी नसीमा है और बेटा खालिद है, समझे, ये दोनों आपस में भाई बहन थे, ठीक है। और खदीजा जो है इसके ऊपर उसकी एक बेटी है सलीमा। तो अब सलमा और खदीजा ने खालिद और सलीमा का आपस में निकाह कर दिया, ठीक है। इनके निकाह से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम क्या है, हामिद, ठीक है, इसका नाम हामिद है। और इधर जो है ये सलमा की
बेटी जो बच गई थी नसीमा, उसकी एक बेटी है शमीमा, है ना, और एक बेटा उसका हुआ राशिद, समझे। तो नसीमा की ये दोनों बच्चे हैं, शमीमा और राशिद, और सलमा की ये दोनों बच्चे हैं, नसीमा और खालिद। तो खालिद का निकाह सलीमा के साथ हो गया, ठीक। अब ऊपर वाली पीढ़ी में जाते हैं कि खालिद ने अपनी बीवी सलीमा से कहा कि मेरी बहन नसीमा का जो बेटा है ना राशिद, मेरी बहन नसीमा की जो बेटी है, इसकी दो बेटी थी नसीमा की, शमीमा और राशिदा, है ना। तो खालिद ने कहा कि मेरी बहन नसीमा की दो बेटियां हैं, शमीमा और राशिदा, तो शमीमा का राशिदा का निकाह हम अपने बेटे हामिद से कर देंगे। इनका एक लड़का पैदा हुआ था, तो हामिद से इन दोनों का रिश्ता हो गया। अब इन दोनों के रिश्ते के बाद ये लड़का पैदा हुआ, कौन? जैद पैदा हुआ, ठीक है। और जैद जब पैदा हुआ तो राशिदा और हामिद ने यह तय किया कि इधर शमीमा की बेटी जो अजीजा है उसके साथ निकाह कर दिया जाए, किसका? जैद का। तो इन दोनों की निकाह से ये पैदा हुआ। एक बार तो फिर से इसको सुन लो, सूरत क्या है, पढ़ाएं क्या? मामला ये है कि इधर पहली पीढ़ी में सलमा की एक बेटी पैदा हुई नसीमा, और एक लड़का पैदा हुआ खालिद, है ना। नसीमा की दो बेटियां हैं शमीमा और राशिदा, उसके बाद शमीमा की एक बेटी है अजीजा। हो गई बात पूरी? इधर चलो, खदीजा की एक बेटी है सलीमा, उसका एक बेटा है मिसाल के तौर पर हामिद, उसका एक बेटा है जैद, समझे। हाँ, इधर एक ही से सिलसिला चल रहा है। तो अब देखो तफसील क्या बनेगी। सलमा और खदीजा ने अपने बच्चों का आपस में निकाह कर दिया। सलमा का बेटा खालिद, खदीजा की बेटी सलीमा, निकाह हो गया इनका। अब इन दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ हामिद, है ना। तो इन दोनों ने क्या किया कि खालिद ने अपनी बहन नसीमा की दूसरी वाली बेटी राशिदा से अपने बेटे हामिद का निकाह कर दिया। इन दोनों का निकाह हो गया। अब इन दोनों से एक बच्चा पैदा हुआ जैद। जब जैद पैदा हुआ तो फिर ऐसी सूरत में इन दोनों ने, राशिदा और हामिद ने तय किया कि हम अपने बेटे का निकाह अपनी बहन शमीमा की बेटी अजीजा से कर देंगे। तो इनके निकाह से पैदा हुआ बकर। अब बकर की पैदाइश के बाद ये मरे हुए यहाँ तक, यूं मर गए, ये दोनों भी मर गए। अब यही दोनों बचे हैं, कौन? सलमा और खदीजा। तो इनका कितना रिश्ता होगा, है ना, हम सौ के बांट लेंगे। क्यों? नींद आ रही है? तो अब इनका कैसे रिश्ता बनेगा वो देखो। तो अब हम इसको देखते हैं। इसका एक रिश्ता क्या है इधर से? एक रिश्ता है कि ये बकर की नानी है, बकरी की नानी की नानी है। तो ये गोया इसका एक रिश्ता हुआ नानी की नानी, एक हो गया ना। दूसरा रिश्ता इसका क्या है वो देखो, ये बकर के दादी, बकर की दादी की नानी है ना। भाई इसकी जब नानी हुई तो इसकी भी नानी ही हुई, तो बकर की दादी की नानी, तो गोया दादी की नानी, दो रिश्ता हो गया इसका। अब तीसरा रिश्ता इसका क्या है देखो, बकर के दादा की दादी, बकर का बाप ये दादा, इस दादा का ही बाप है, तो ये गोया के बकर का परदादा हो गया। और परदादा की माँ है तो क्या वह दादा की दादी हुई ना। तो ये तीसरा रिश्ता हो गया दादा की दादी। तीन रिश्ते इसके हो गए। और इसका कौन सा रिश्ता है सिर्फ देखो तो, बकर के दादा की नानी, दादा की नानी, तो गोया ये है एक रिश्ता, दादा की नानी, ठीक है। तो इसको तीन रिश्ते हासिल हो गए, सलमा को और खदीजा को एक ही रिश्ता हासिल हुआ, ठीक ना। ये सूरत है। तो अब इसमें बताना सिर्फ ये है कि इमाम अबू यूसुफ ने कहा हम इतना रिश्ता नहीं देखेंगे। बकर के इंतकाल के वक्त सलमा और खदीजा बाहयात हैं, इन दोनों को आधा आधा दे देंगे, काम खत्म, समझे। और इमाम मोहम्मद ने फरमाया नहीं, बकर ये सलमा जो है ये तीन रिश्ता रखती है और खदीजा एक रिश्ता रखती है, तो कुल माल को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जो इनका हिस्सा बन रहा है उसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। और 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद 3 दे देंगे किसको, और 1 देंगे किसको, दादा की नानी,
ایک دے دیں گے خدیجہ، ہے نا، یہ صورت ہے، ٹھیک نا، اس طور پر ہم تقسیم کریں گے، ٹھیک، یہ تو پورا ہو گیا.